Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the isomerism. Let's start. This is Saad Shahid, and in this video we are going to cover content related to MDCAT. Isomerism का topic है and we'll cover the content of isomerism. So beta, what is isomerism? Iso means same. So beta, same क्या होता है? Isomer, and ism means phenomena. So we have same molecular formula. Those compounds which have same molecular formula, ठीक है, different compounds हो, they have similar molecular formula, बेटा they are actually isomers of each other. अगर हम structural isomerism की बात करें, so we will have same molecular formula but different structural formula. लेकिन अगर हम geometrical isomerism की बात करें, we will have same molecular formula as well as same structural formula. ठीक है, तो बेटा अगर हमने isomers को पढ़ना है, it means these are the compounds which have same molecular formula. बेटा molecular formula same हमेशा होएगा, हर टाइप में होएगा, ठीक है, but structure is different. It is not in every case. We have two types here जो हमारे content में है, structural isomerism and geometrical isomerism. Geometrical isomerism की type जो हमने discuss करनी है, that is cis-trans isomerism. We will discuss only cis-trans isomerism, although A levels में optical isomers का भी concept आता है, but बेटा that is not relevant with MDCAT content. तो ठीक है, उसको हम discuss नहीं करेंगे. We'll only focus over cis-trans isomers. We'll only discuss this one, cis-trans isomerism. We will not discuss ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में, ठीक हो गया. विल नॉट डिस्कस द फर्दर डिटेल ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स जो कि ज्योमेट्रिकल ही होते हैं, फॉर एग्जांपल इजी आइसोमर्स, एंटी और सिन आइसोमर्स. बेटा ये डिफरेंट टाइप्स जो होंगी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट एमडीकैट कंटेंट को कवर करेंगे, ठीक है. सो आइसोमेरिज्म, those compounds which have same molecular formula, that is the actual definition of isomers. First, we'll discuss the structural isomerism. On the basis of different structures, ये isomers arise होते हैं. For example, we have chain isomerism. That arises due to the difference in the chain. We have straight chain molecules, we have branch chain molecules, we have closed chain molecules. तो डिफरेंट चेन्स होती हैं आपके पास, ठीक है. तो बेटा चेन आइसोमेरिज्म में हम अगर बात करें, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन हमेशा यूज होएगा. स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स एंड ब्रांच्ड चेन compounds, these are isomers of each other. Straight chain और branched chain. For example, बेटा ब्यूटेन की अगर हम बात करते हैं, ब्यूटेन is C4H10. We have 4 carbons, 1, 2, 3 and 4. All the carbons are having hydrogens. अभी hydrogens यहाँ पे कितने हैं? We have 10 hydrogens. 2 and this carbon is having 3 carbons. So overall, this compound is containing 4 carbons and 10 hydrogens. So बेटा अगर इसी straight chain को मैं branch में convert कर दूं, branch क्या होती है पहले तो ये पता होना चाहिए. Branch alkanes क्या होती हैं? If central carbon
is attached with any alkyl group, ठीक है, तो वो बन जाती है बेटा हमारे पास ब्रांच. सो इन दिस केस अगर हम 3 कार्बन स्ट्रेट लाइन में लिख दें, दैट इज प्रोपेन, एंड दिस इज इट्स सेंट्रल कार्बन. सेंट्रल कार्बन इज फर्दर अटैच विद एनी ग्रुप, एक कार्बन के साथ अटैच कर दिया, दैट इज CH3. तो बेटा दिस इज कॉल्ड ब्रांच, ठीक है. अ ब्रांच, द अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड विद द स्ट्रेट चेन, तो बेटा ये बन गई है ब्रांच आपके पास. सो नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन. दिस इज कार्बन, कार्बन इज हैविंग 1 बॉन्ड, सो वी हैव टू मेक 3 अदर बॉन्ड्स जहां पे हाइड्रोजन्स होंगे. दिस कार्बन इज हैविंग 3 बॉन्ड्स राइट नाउ, सो वी हैव टू अटैच 1 हाइड्रोजन विद दिस टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन. Similarly, this is the carbon, we have to attach 3 hydrogens with this. So बेटा यहाँ पे we are observing कि 4 ही कार्बन्स हैं, 3 hydrogens, 3 hydrogens, 3 hydrogens and 1 hydrogen. So we have 10 hydrogens as well. So these both compounds are having C4H10. They have same molecular formula but different structural formula. You can see the arrangement of atoms different in both structures. So बेटा ये बता रहा है कि चेन आइसोमर्स है. Similarly अगर आप पेंटेन की बात करते हैं, पेंटेन स्ट्रेट लाइन में अगर आप लिखते हो, स्ट्रेट लाइन 1 2 3 4 and 5 straight line, then I'll convert 1 carbon into the chain. 1 2 3 4 carbons in a straight line and 1 carbon is in the branch. जो सेंट्रल कार्बन के साथ अटैच करना होगा, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. यहां पे कार्बन लगाते हो या यहां पे कार्बन लगाते हो, ठीक है, बिकॉज द कंपाउंड वुड रिमेन सेम, उसका नेम सेम रहेगा. सो मैं यहां पे कार्बन को एक अटैच करवा देता हूं. बेटा वैलेंसीज कार्बन की यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर कार्बन की वैलेंसी आपने कंप्लीट करनी है. This carbon would have 3 hydrogens, this carbon would have 2 hydrogens, this carbon would have 2 hydrogens, इस कार्बन के भी 2 hydrogens होंगे, and this carbon would have 3 hydrogens. So total 5 carbons है आपके पास, but you will have 12 hydrogens. Similarly, in this case, you will have 3 hydrogens here, 3 hydrogens here, 3 hydrogens here, and 2 hydrogens here and 1 hydrogen here. So total 12 आपके पास इस केस में भी हो गए. Now I will shorten this chain, 3 straight line में लिख देता हूं और 2 branches central carbon पे लगा देता हूं. 1 carbon on this side, 1 carbon on this side. Sometimes student ask कि सर ये कार्बन यहां पे ही लगा देते तो क्या होता, तो बेटा ये longest chain बन जाती जो कि 4 कार्बन्स की होती और एक ही ब्रांच होती, दैट वुड बी द सेम मॉलिक्यूल. तो इसलिए 2 अलग अलग ब्रांचेस लगा दी, CH3 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 CH3. सो बेटा C5H12 यहां पे भी हो गए. तो ब्यूटेन इज मेकिंग हाउ मेनी आइसोमर्स? 2. पेंटेन हैज 3 आइसोमर्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड हियर. अगर हेक्सेन का पूछ लिया जाता है तो बेटा इट हैज 5 आइसोमर्स. हाउ मेनी आइसोमर्स? 5 हेक्सेन के. हेप्टेन के कितने होंगे? इट वुड हैव 9 आइसोमर्स. बेटा अब डिफिकल्ट होता जाएगा, जैसे कार्बन चेन बढ़ती जा रही है, इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर. तो वी हैव अ फार्मूला जिससे आप अल्केन्स के तमाम चेन आइसोमर्स को फाइंड आउट कर सकते हो. अल्केन्स के जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स हैं यू कैन इजीली मेक बाय यूजिंग दिस फार्मूला. मैंने आपको बताया कार्बन 5 के कितने हैं, पेंटेन के we have 3 isomers. So let's solve by using this formula. This is the formula we can use to find out the isomers of alkanes for the alkanes. Remember this one, ठीक है? This is the formula. 2 पेंटेन की अगर आप देखना चाहते हो, for the pentane, बेटा 2 की पावर that is 5. यहां पे 5 कार्बन वाले हम बात कर रहे हैं ना, पेंटेन इज हैविंग 5 कार्बन, सो 2 की पावर 5. 5 minus 4 that is 1 plus 1, so answer is 3. So pentane has 3 isomers. So बेटा ये जो फार्मूला है that is only applicable for the first 7 alkanes, only for
first 7 alkenes. Methane, ethane and propane are not having any extra isomer. उन्हीं का एक एक structure ही होता है, ठीक है? They would not have any structural isomers, ठीक है? Propane के बाद we have butane. Butane has 2, pentane has 3, hexane has 5, and heptane has 9 isomers. ये just 7 तक applicable होएगा. अगर 8 वालों को देखना है तो उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या होएगा बेटा? अगर ऑक्टेन के हमने आइसोमर्स को कैलकुलेट करना है, वी विल हैव दिस एक्सप्रेशन 2C-4, that is the same formula, but we have to add +2. That is the formula for octane. और नॉनेन के लिए we will use the same formula, लेकिन +3 कर देना है आपने. C-4 +3 कर दें, ठीक है? और डिकेन, it has 75 isomers. इन तमाम आइसोमर्स को ऐड कर दो, you will get the total isomers of decane. लेकिन डिकेन का याद रखने की जरूरत नहीं है. We have the formula for decane as well. 2 C-4 +1 + n, यानी कि ये पूरा फॉर्मूला सेम होएगा. +n यानी कि 10 कार्बन्स हैं तो +10 कर देंगे हम, ठीक हो गया? सो दैट वुड बी द फॉर्मूला फॉर डिकेन. डिकेन के पॉसिबल आइसोमर्स कितने होते हैं? बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाए वी कैन कैलकुलेट द फर्स्ट 10 आइसोमर्स ऑफ एल्केन्स. होप सो ये ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे टू सॉल्व द MDCAT MCQs. आसानी से आप इसको अटेम्प्ट कर लोगे. सो नाउ वी हैव पोजीशन आइसोमर्स. Position isomers which arises due to the difference in the position of the functional group, which arises due to the difference in the position of the functional group, arises due to the difference in the position of functional groups. बेटा डेफिनेशंस तो नहीं एग्जाम में असेस की जानी. यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट कि पोजीशन चेंज करनी है हमने. फॉर एग्जांपल यू हैव डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है आपके पास. दिस इज 1 ब्यूटीन. This carbon is having 2 hydrogens, this one is having 1 hydrogen, this carbon has 2 hydrogens and this carbon is having 3 hydrogens. तो hydrogens को मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा, ठीक है? I am just showing the position change in this molecule and the other molecule जो कि इनके position isomers बन जाएंगे. Alkene के double bond की position change कर दी जाए. 4 carbons लिखें, but now I am shifting this double bond over here. So बेटा this is called position isomerism. इसी तरह से alcohols. Alcohols में we have carbon, 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 that is OH. OH is attached with the first carbon in this case. बेटा लेकिन अगर मैं ये OH second carbon के साथ attach करवा दूं, what will happen? So बेटा this one is called 2-propanol. This one is 1-propanol. This one is 2-propanol. Name भी change हो गया, position भी change हो गई, ठीक है? Now we have different structure as well, but molecular formula is same. Structure different हुआ है due to the difference in the position of the functional group. Functional group की मैंने position को change कर दिया. Got it? Similarly, if you have ketones या halogenoalkanes, C, C, C and C, that is having X. Halogen है कोई भी, halogenoalkanes हैं. So just position of X अगर मैं change कर दूं तो it arises position isomerism. Carbon, 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 carbon. So I am attaching halogen with the second carbon now. It becomes 2-halobutane. This one is 1-halobutane. ठीक हो गया? Halogen के लिए word use हो रहा है halo. ठीक हो गया? Similarly बेटा ketones की अगर example को हम use करें तो इसी तरह से ketones भी show होंगे. We have ketone group here. This one is 2-pentanone. अगर मैं यही CO group move करवा दूं यहाँ पे and it converts into this one,
So beta that is called 3-pentanone. So position of functional group change किया, that arises position isomerism. So beta just आपके पास specifically halogens, halogen के compound, halogenoalkanes, alcohols, alkenes, alkynes, ketones, esters, ये तमाम functional group जो है position isomerism का फिनोमिना शो कर सकते हैं. ठीक हो गया? So now moving towards the next one, functional group isomers. यहाँ पे आप relationships याद रखें. कुछ relations. बेटा अगर alkene है, alkene is an isomer of cycloalkanes. Cycloalkanes. They are isomers. Alkene कोई भी लिख लें. That is C3H6. This carbon is having 3 hydrogens, this one is having 1, and this carbon is having 2 hydrogens. So total 3 carbons है और 6 hydrogens है. Cycloalkane अगर लिखें तो बेटा 3 carbons वाला ही लिखना होगा. Like this is cycloalkane. This carbon is having 2 hydrogens, this one is 2, this one is having 2 hydrogens. So C3H6. So these both are functional group isomer. O levels में भी पढ़ते रहे, A levels में भी पढ़ते रहे, FSC में भी ये content पढ़ा isomerism का. So बेटा alkenes and cycloalkanes. Cycloalkanes आप organic compounds की classification में ही पढ़ चुके होते हैं. Classification of organic compounds में जहाँ पे आप पढ़ते हैं homocyclic, alicyclic, hydrocarbons. तो बेटा this is not aromatic. लेकिन आपके पास एलिसाइक्लिक हैं ये, ठीक है, क्लोज चेन रिंग में है, तो दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. दिस वन. इसी तरह अगर हम साइक्लोएल्कीन्स की बात करें, बेटा साइक्लोएल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया एंड दे आर मेकिंग अ क्लोज चेन. तो दिस कार्बन इज हैविंग हाउ मेनी हाइड्रोजन्स, 1, दिस वन इज हैविंग 1 हाइड्रोजन एंड दिस कार्बन इज हैविंग 2 हाइड्रोजन्स. So C3 हो गए और हाइड्रोजन्स 4. That is having CnH2n minus 2, which is the general formula of alkynes. So बेटा जो alkynes होते हैं, alkynes are functional group isomers of cycloalkenes. Cycloalkenes. साइक्लोएल्कीन का मैंने यहां पे स्ट्रक्चर बनाया तो 3 कार्बन्स वाला एल्काइन भी लिखकर देख ले, C3H4 ही होएगा. ठीक है, सो दे वुड हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड दे आर हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n. cycloalkanes and alkenes both are having this general formula. Alkynes and cycloalkenes are having this general formula. So बेटा रिलेट करवाना है आपने. Now moving towards the next one. बेटा जितने भी कार्बोक्सिलिक we have कार्बोक्सिलिक एसिड्स या कीटोन्स हैं या अल्कोहल्स हैं, इनके भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के साथ जो आइसोमर्स होएगा, दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. यहां पे पेयर स्कीम आपने याद रखनी है. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आइसोमर्स ऑफ एस्टर्स. एक एक एग्जांपल इसकी लिखकर देखें जी. कार्बोक्सिलिक एसिड, टेक प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड CH3 CH2 COOH, दैट इज प्रोपानोइक एसिड. अगर मैं मिथाइल एथेनोएट का फॉर्मूला लिखूं CH3O CO CH3, बेटा बोथ आर हैविंग सेम मोलेकुलर फॉर्मूला. कितना मोलेकुलर फॉर्मूला बन रहा है 3 कार्बन्स के लिए, CH3 CH2 C2H5 COOH. तो 3 कार्बन्स हैं, 6 हाइड्रोजन्स हैं, CnH2n डबल और O2. दे बोथ आर हैविंग दिस जनरल फॉर्मूला. एस्टर्स का और कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव दिस जनरल फॉर्मूला. दे आर हैविंग सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH लास्ट में आता है
and esters are having COO and both bonds are attached with the carbon chains. ठीक है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में CO और O अटैच होता है हाइड्रोजन के साथ. सो बेटा दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. यहां पे भी हमने एक पेयर को डिस्कस किया. इसी तरह से बेटा वी हैव अल्कोहल्स एंड ईथर. alcohols and ether. बेटा ether functional group isomer है. Oxygen is attached with the carbons from both sides. तो बेटा जितने कार्बन्स हैं उसके डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन्स होंगे. If we have C2, so we'll have H6 और एक ऑक्सीजन CN H2N plus 2 and oxygen. This is the general formula of alcohols and ether. बेटा एक एक एग्जाम्पल खुद भी आपने इन तमाम की सॉल्व करनी है. If you want to understand functional group isomerism, must do one example by yourself. ठीक है. And now moving towards the last relationship. 1, 2, 3, 4 रिलेशंस को हमने डिस्कस किया, 4 पेयर्स को डिस्कस किया. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पेयर, दैट इज कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स. दे बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स both are isomers of each other. And this is the same phenomena which we always observed in the molecule जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है. They are disaccharides. उन दोनों में भी बेटा एल्डिहाइड और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप का ही डिफरेंस आता है. ठीक है. एल्डिहाइड फॉर एग्जांपल CH3COH. लेकिन रिमेंबर दिस थिंग, कीटोन्स कभी भी दो कार्बन्स वाले होते ही नहीं हैं. The first member of ketone series is propanone. CH3 दोनों sides पे and CO is in the center. That is called propanone, 2-propanone. So बेटा कितने कार्बन्स हैं? 3. कितने हाइड्रोजन्स हैं? 6. How many oxygens? Only 1. So बेटा CN H2N and O. This is the general formula of ketones and aldehydes. दोनों का general formula same है, but they have different structural formula. ये general formula molecular formula को explain करते हैं. ठीक है, remember this one. So they are showing you the same molecular formula, but they have different structural formula. ठीक है. So now moving towards the metamerism. Metamerism क्या है जी? अगर metamerism की हम बात करें, metamerism, if we have a functional group और उसके दोनों साइड्स पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन चेन की, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन चेन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन चेन on both sides of functional group arises metamerism. एक बिल्कुल सेंटर में है और एक सेंटर में ना हो. फॉर एग्जाम्पल बेटा we have to take those functional groups which are central functional groups. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ईथर है, you have इथीन, यू हैव कीटोन्स, वो तमाम फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन चेन के सेंटर में आते हैं. ठीक हो क्या? सो आई एम यूजिंग 3 एग्जांपल्स हियर. ऑक्सीजन के दोनों साइड्स पे वी हैव 2 कार्बन्स, सो दैट इज कॉल्ड एज डाइइथाइल ईथर. और अगर मैं यही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करवा दूं कार्बन चेन की दोनों साइड्स पे, ऑक्सीजन यहां पे आ जाए, and we'll have
3 कार्बन ऑन वन साइड, 1 कार्बन ऑन वन साइड. सो बेटा ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? मेटामेरिज्म. आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा सर ये पोजीशन आइसोमर्स है. यस, they are position isomers as well because we are shifting the position of the functional group. And which one is functional group? That is oxygen in this case. Oxygen is the functional group of ether. Ether है ये आपके पास. This is CH3, this is CH2, this is oxygen, this is CH2, this is CH3. In this case we have CH3 oxygen and on this side we have C3H7. Both have same molecular formula but different. Unequal distribution of the carbon, different arrangement है. That's why it is called structural isomer. ठीक है. और यहाँ पे ऑब्जर्व करो दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप्स पे ही मुश्तमिल हैं. ठीक है. तो ईथर shows the phenomena of metamerism. Got it? Similarly, कीटोन को आप देखो, आप यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे CO ग्रुप को रिप्लेस करवा दीजिए. कार्बन कार्बन CO कार्बन एंड कार्बन. सिमिलरली ये कीटोन की पोजीशन को आप चेंज करवाएं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन शो करवाएं. दिस इज कार्बन, नाउ वी हैव कीटोन हियर, कार्बन कार्बन एंड कार्बन. दिस इज द फंक्शनल ग्रुप CO and now we have unequal distribution of carbon on both sides which arises metamerism. Beta these both molecules are metamers of each other. Got it? So आपके पास लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर है, that is टॉटोमेरिज्म. That is टॉटोमेरिज्म. So बेटा टॉटोमेरिज्म में क्या होएगा? Shifting of protons. We'll shift the proton from one functional group to another functional group. हाइड्रोजन आइन ट्रांसफर हो जाएगा. बेटा ए लेवल्स में आप लोग एग्जांपल पढ़ते हो अमीनो एसिड्स की. अमीनो एसिड्स में वी हैव अमीनो ग्रुप एज वेल एज एसिडिक ग्रुप. एंड जो दो बॉन्ड्स होते हैं कार्बन के, यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड ऑन दिस साइड वी हैव कार्बन चेन अल्काइल. ऑन वन साइड वी हैव एन H2 ग्रुप एंड ऑन वन साइड वी हैव COOH. Acids have tendency to lose hydrogen ion and base have tendency to accept hydrogen ions. So बेटा यहां से अगर shifting हम show करवाएं, so it arises tautomerism. Hydrogen ion from acidic group it moves towards the basic group. और आपके पास क्या structure बनेगा अब यहां पे observe कीजिए. So it will arise tautomerism's phenomena. कैसे? This is R. It would remain same. This is carbon, this is hydrogen and it becomes COO negative and it becomes NH3 positive. और बेटा ये जो मुकम्मल आपके पास ग्रुप बन रहा है that is called zwitterine. And remember the question about zwitterine? It is acidic in nature as well as basic in nature. ठीक है. So it shows the amphoteric behavior. तो ज्विटर आइन बन जाता है. वापस ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मूव करे और वापस अमीनो एसिड में कन्वर्जन हो जाती है. अमीनो एसिड से ज्विटर आइन से अमीनो एसिड, ज्विटर आइन. सो वी हैव दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो कि शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन से अराइज हो रही है. दैट इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म. एग्जाम्पल याद रखनी है अमीनो एसिड से ज्विटर आइन. गॉट इट? सो बेटा नाउ वी हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. Although we have two types, cis trans and optical, but we are not going to discuss optical isomerism because that is not the content of MDCAT syllabus. So MDCAT syllabus में we have only cis trans isomer जो कि A levels में भी आप लोग पढ़ चुके हैं and FSC content में भी just cis trans isomers को ही reflect करवाया जाता है. बेटा cis trans isomerism that is having same molecular formula and same structural formula. Structural isomerism में क्या होता था? We are having same molecular formula but different structural formula. In geometrical isomerism, in cis trans isomerism, we are having same molecular formula as well as same structural formula. तो बेटा अगर मोलेक्युलर फार्मूला भी सेम है,
स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, तो डिफरेंट क्या है? यहां पे अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स स्पेस में डिफरेंट होती है, 3D डायमेंशंस में, 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है एटम्स की, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म फिनोमिना arises due to the 3-dimensional arrangement of the atoms, arrangement of atoms, जो कि ये डिफरेंट होती है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन 3-dimensional स्पेस में अगर डिफरेंट है तो बेटा तब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमिना राइज होता है। एंड इट ऑलवेज शो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, बेटा ऑल दोस कंपाउंड्स विच शो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वो ही सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो करेंगे। एंड रिमेंबर व्हेनेवर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये मैं जस्ट एफएससी कंटेंट की बात कर रहा हूं या ए लेवल्स कंटेंट की बात कर रहा हूं, व्हेनेवर वी विल हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, so these molecules will show cis trans isomerism। लेकिन तमाम molecules इनके भी नहीं, उसके लिए भी कुछ conditions है और उन conditions को हम different questions के through cover करेंगे। बेटा if we have these 4 sites, यहां से होनी है restricted rotation, the first thing restricted rotation, जो कि एल्कीन्स शो करेंगे। एल्केन्स विल नॉट शो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और एल्काइंस भी नहीं शो करेंगे। एल्केन्स फ्री रोटेशन शो करते हैं, पूरा मॉलिक्यूल रोटेट करता है। इन एल्कीन्स ओनली दिस साइड विल रोटेट, दिस साइड इज फिक्स्ड एंड ओनली दिस साइड इज रोटेटिंग। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, और दिस साइड इज फिक्स्ड एंड दिस साइड इज ओनली रोटेटिंग। ऑलराइट, यहां पे दूसरी कंडीशन क्या है? एक तो डबल बॉन्ड होना जरूरी है, द फर्स्ट थिंग, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो शो कर सके, एंड द सेकंड थिंग दे मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स, ईच कार्बन इज हैविंग डिफरेंट ग्रुप। अगर तो बेटा तभी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमिना अराइज होएगा। अगर यहां पे ये कार्बन है, इफ वी विल हैव हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑन दिस साइड एंड CH3 and hydrogen on this side, beta it will not arise cis trans isomerisms phenomena because you can see same atoms on this carbon। अगर same atoms दोनों तरफ आ गए so बेटा ये cis trans isomerism का फिनोमिना शो नहीं करेगा। स्पेस में डिफरेंट एटम्स का होना जरूरी है, डिफरेंट एटम्स का होना या डिफरेंट ग्रुप्स का होना जरूरी है, डिफरेंट एटम्स or groups। So beta which molecules will show cis trans isomerism? जो कि restricted rotation show करेंगे और which have different atoms or groups on each double bonded carbon। ठीक हो गया? So अगर मैं यहां पे observe करूं, this molecule can show cis trans isomerism or not? बेटा इस कार्बन को देखूं, डबल बॉन्डेड है, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी, यस इट कैन शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। दूसरी कंडीशन को भी देखते हैं, वी हैव हाइड्रोजन एंड वी हैव CH3, दोनों डिफरेंट है। इस साइड से तो बिल्कुल ठीक है, इस साइड से ऑब्जर्व करते हैं, दिस कार्बन इज डबल बॉन्डेड, फर्स्ट कंडीशन तो जस्टिफाई हो गई। वी हैव हाइड्रोजन एंड वी हैव इथाइल ग्रुप, सो दीज बोथ ग्रुप्स आर डिफरेंट, दिस इज ग्रुप, दिस इज ग्रुप, हाइड्रोजन को भी ग्रुप कंसीडर कर ले, सो वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स, सो दिस कैन शो cis trans isomerism। तो बेटा if मैं इनको कह रहा हूं diagonals, if diagonals are different, these type of molecules are called cis molecules। ठीक हो गया, वो होंगे cis। if diagonals are same, they are called trans, they are called ट्रांस। या अगर आप सिस की बात करते हो, इफ दीज साइड्स आर हैविंग सेम ग्रुप, तो बेटा वो कहलाएंगे सिस।
अगर ये साइड्स डिफरेंट ग्रुप्स रखती हैं, दे आर कॉल्ड ट्रांस। ये आपने अपनी ईज के लिए इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है, जिस तरह से भी आप सिस ट्रांस को याद रखना चाहें। ठीक हो गया। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल? दैट इज 2 कार्बन्स, पेंटीन। कौन सा पेंटीन है? वी हैव 2 पेंटीन हियर, दैट इज सिस 2 पेंटीन, cis 2 pentene, and the name of this molecule is trans 2 pentene. नेमिंग भी याद रखनी है बेटा। we have hydrogen here and we have hydrogen here. तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है केमिकल बॉन्डिंग में, हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को बेटा। दे हैव जीरो डायपोल मूवमेंट। ट्रांस का डायपोल मूवमेंट क्या होता है? दे हैव जीरो डायपोल मूवमेंट। जीरो डायपोल मूवमेंट है, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और नॉन पोलर वीक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इफ दे हैव वीक मॉलिक्यूल्स तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होएगा। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। They are less stable. They are less stable. If they are less stable, it means they are more reactive. They are more reactive. जो trans alkenes होंगे, they are more reactive. They are less stable. They have weak intermolecular forces. That's why they have low boiling point. Why this is so? Because they become non-polar. Why they are non-polar? Because they have zero dipole moment. Zero dipole moment क्यों होएगा? Because CH और CH एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ठीक हो गया। Now we have CCH3 here and CC2H5 here. तो बेटा यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होएगी। We have different groups attached on these sides. ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होएगी। सो ये जो बॉन्ड्स हैं इनकी वजह से नॉन पोलर नेचर यहां पे आ गई, लेकिन इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल इट बिकम्स पोलर बिकॉज वी हैव C2H5 हियर एंड CH3 हियर। सो बेटा इसी के साथ साथ एक जनरल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो सिस एल्कीन्स होते हैं, सिस एल्कीन्स बेटा दे आर पोलर इन नेचर। They are polar in nature because they have some dipole moment. ठीक हो गया। और जो trans alkenes होते हैं, we have already discussed this concept in chemical bonding as well. chemical bonding में ये हम पढ़ चुके हैं। trans alkenes जो हैं they are having zero dipole moment. उनका dipole moment zero होता है। That's why they are non-polar. And cis alkenes are not having zero dipole moment. इनका dipole moment zero नहीं होता, so that's why they are polar in nature. और अगर polar है तो बेटा we know polar have strong intermolecular forces. अगर intermolecular forces strong है, so they would have high boiling point. They are more stable. So बेटा cis alkenes are more stable. अगर stable ज्यादा है, so they are less reactive. Trans alkenes are less stable, but they are more reactive. They have low melting and boiling point. They have weak intermolecular forces. Trans alkenes की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। Due to the non-polar behavior. Got it? Because of the zero dipole moment. ये dipole moment की वीडियो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि cis और trans alkenes का डायपोल मोमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, यू कैन ऑब्जर्व दैट वीडियो। अदरवाइज यहाँ पे जितने पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं बेटा, दैट इज मोर देन इनफ टू कवर योर MDCAT एग्जाम। MDCAT का ये क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द सिस आइसोमेरिज्म इज शोन बाय बेटा, पहले वी हैव दिस मॉलिक्यूल, इट इज डबल बॉन्डेड कार्बन, यस, इट हैज डिफरेंट ग्रुप्स एज वेल, CH3H H एंड CH3। तो बेटा ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमिना तो शो करेगा, बट वी हैव सेम ग्रुप ऑन बोथ साइड्स। दिस वन इज CH3 एंड दिस वन इज CH3, सो दिस इज
trans 2-butene. This is trans 2-butene. That is not cis isomer. This is trans isomer. This is trans 2-butene. ठीक हो गया? So trans 2-butene is non-polar. It has zero dipole moment. It has less stability and more reactivity. Are you getting these points? So बेटा B option को देखते हैं. We have this B option. Yes. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, हाइड्रोजन है, we have CH3. We have hydrogen and we have CH3. So this is having the different diagonals. तो बेटा ये हुआ cis 2-butene. This is cis 2-butene. This is trans 2-butene. That is polar in nature. It is not having zero dipole moment. ठीक है, it has some dipole moment. वो कोई भी वैल्यू होए, but it is not equivalent to zero. ठीक है, polar है, strong intermolecular forces हैं, high boiling point है, और इसी वजह से high boiling point की वजह से it is more stable. Stability ज़्यादा है, so it is less reactive. ठीक हो गया? So this is cis isomer. ठीक है, आगे भी एग्जाम्पल को देखते हैं. We have CH3 डबल बॉन्ड है, फर्स्ट कंडीशन तो अप्लाई होती है, बट वी हैव सेम ग्रुप ऑन दीस बोथ साइड्स ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन. बेटा रूल ऊपर बताया था, डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स होने चाहिए, अदरवाइज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो नहीं होता. सो बेटा ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो ही नहीं कर सकता. ठीक हो गया? अगेन यू कैन सी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ओवर हियर. सो बेटा ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो नहीं करेगा. So we have B option, that is correct option for this MDCAT MCQ. So बेटा इसी तरह से हमने अपने तमाम आइसोमेरिज्म के टॉपिक्स को कवर अप किया, structural isomerism and geometrical isomerism. If you have further queries or questions regarding any topic of isomerism, तो बेटा do let us know in the comment box. इंशाल्लाह आपकी queries को वहाँ पे आंसर भी कर दिया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड योर मिस्टेक्स या अनक्लियर्ड कॉन्सेप्ट्स. प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी. मस्ट प्रिपेयर योर नोट्स. अपने नोट्स खुद बनाएं, प्रैक्टिस करें जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक हो गया? तभी रिटेंशन पावर भी इंक्रीज होएगी और आपके कंसेप्ट्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करेंगे. स्टे ट्यून्ड विद अस. दुआओं में याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.